Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss another important signal which is called as rectangular signal. So let's get started. So in the rectangular signal, you can see the rectangular signal is also called as a gate signal. So the representation of this rectangular signal or the gate signal looks like this. If I say, if anybody use the rectangular term, then the rectangular signal can be represented, is always represented as a rect small t by capital T. So this is the rectangular signal. Similarly, if anybody use the gate signal, दोनों signal same है, सिर्फ different name है. If you use the gate signal, then it is represented mathematically a pi t by capital T. So this is the mathematical representation or mathematical denotion of rectangular signal, and this is the mathematical representation of the gate signal. दोनों signal same है, different notation है and different name है. So what will be the mathematical equation for this rectangular signal or the gate signal? So for that purpose, if I want to define the a rectangular t by capital T, or if I want to define a pi small t by capital T, both of these signal are same, and this is represented by, it will have a value of a, this a value will come here for t greater than minus t by 2 and less than capital T by 2. Similarly, it will have a zero value for otherwise. So this is the mathematical definition of a rectangular signal or a gate signal. So ये अगर mathematical representation है, तो what will be the graphical representation? So let us see the graphical representation. The graphical representation looks like this. So if I write a rectangular small t by capital T, and if this is the capital T or time axis, if it is the time axis small t, then the rectangular function will be defined like this, कि there will be a rectangular signal like this which will be existing. देखिए माइनस t by 2 से t by 2 तक का वैल्यू कितना है, कैपिटल A. सो इट इज माइनस t by 2 और यहाँ पे आपका कैपिटल T by 2 एंड दिस इज 0. और एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड आपका A, और बाकी सारे जगह पे आपका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज 0. सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन और रेक्टेंगुलर सिग्नल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सेम रिप्रेजेंटेशन आपको ये गेट सिग्नल के लिए मिलेंगे. दोनों अलग अलग नाम है मगर एक ही चीज को डिफाइन करते हैं. सो ये हुआ आपका ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of the rectangular signal or the gate signal. Now suppose if we want to represent this rectangular signal using the unit step signal, आपको अगर बोला जाए कि please represent this rectangular signal or gate signal using the unit step function. unit step function मतलब ut से डिफाइन कीजिए कि rectangular function को ऐसे डिफाइन कीजिए कि उसमें ut रहे. सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट मुझे ut को डिफाइन करना होगा. सो एज यू नो व्हाट इज ut, तो मैं पहले ut को ड्रॉ करता हूं. दिस इज द टाइम एक्सिस. सो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ut फॉर t ग्रेटर देन 0. सो फॉर t ग्रेटर देन 0 आपका ut वैल्यू क्या होता है, 1 वैल्यू. t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 पे ut इज अनडिफाइंड, मैंने बोला था, और t लेस देन 0 पे आपका ut वैल्यू 0. सो दिस इज द ut सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल. नाउ व्हाट विल डू, अब देखिए, नाउ वी विल फाइंड u ऑफ t प्लस कैपिटल T by 2 और एट दिस टाइम एक्सिस. मैंने क्या किया कि t प्लस कैपिटल T by 2 किया, मतलब टाइम शिफ्टिंग किया. टाइम शिफ्टिंग जब भी करेंगे, यहां से सिग्नल था, जैसे ही मैंने प्लस T by 2 यहां पे डालेंगे तो दिस सिग्नल विल शिफ्ट इन द टाइम डोमेन, मतलब इधर शिफ्ट होगा. कितना शिफ्ट होंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. कितना शिफ्ट होगा, प्लस t by 2 टाइम शिफ्ट होंगे. दैट मीन्स ये जो मेरा ओरिजिन पे था ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएंगे ये वाले पॉइंट पे.
एंड दिस पॉइंट विल बी माइनस t/2। तो ये वाला सिग्नल कैसे दिखेंगे, इसके बाद मेरा 0, अब इससे मेरा वैल्यू होगा 1 और यहां पे कुछ इस टाइप का। सो दिस इज द u ऑफ t plus t/2। नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ut माइनस कैपिटल t/2। दैट मीन्स ये जो ut सिग्नल था, इस ut सिग्नल को हम लोग राइट पे शिफ्ट करेंगे। विल शिफ्ट दिस इन दिस डायरेक्शन। कितना शिफ्ट होगा, t/2। दैट मीन्स द सिग्नल विल लुक लाइक दिस। इस टाइप का सिग्नल आपका पास आएगा एंड दिस इज कैपिटल t/2 एंड दिस वैल्यू इज 1। सो ये हुआ मेरा ut प्लस t/2, दिस इज u ऑफ t माइनस कैपिटल t/2। ये दोनों सिग्नल मेरे पास है। नाउ लुक एट द सिग्नल। ये जो पहला वाला सिग्नल है u ऑफ t प्लस t/2 से मैं अगर तीसरे वाला थर्ड सिग्नल को सब्सट्रैक्ट करता हूं, इफ आई सब्सट्रैक्ट दैट, देन व्हाट विल हैपन। सो फर्स्ट let us draw the timing instant. So these are the timing instant. यहां पे मैं टाइमिंग इंस्टेंट को डिनोट कर रहा हूं। So this is capital T/2, this is minus T/2, this is 0. अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं दिस सिग्नल से ये वाला सिग्नल को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। So u ऑफ t प्लस कैपिटल T/2 माइनस u ऑफ t माइनस कैपिटल t/2, ये वाले सिग्नल को मैं प्लॉट करना चाहता हूं। तो लेस देन t/2 से लेस देन माइनस ये वाले सेक्शन के लिए, यहां से लेकर ये वाले सेक्शन के लिए, यहां पे वैल्यू कितना है 0, यहां पे वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस 0 इट विल कम आउट टू बी 0। ओके, नाउ यहां पे वैल्यू कितना है, ये वाले टाइम ड्यूरेशन से, मतलब माइनस t/2 से लेकर 0 तक, यहां पे वैल्यू कितना 1, यहां पे वैल्यू कितना 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, यहां पे 1 माइनस 0 इज 1, दिस इज 1। नेक्स्ट यहां पे वैल्यू कितना है, यहां से लेकर 0 से लेकर माइनस t/2 तक, तो प्लस t/2 तक, ये वाले टाइमिंग इंस्टेंट तक, यहां से लेकर ये वाले टाइमिंग इंस्टेंट तक वैल्यू कितना है 1, यहां पे वैल्यू कितना है 0, दैट मीन्स 1 माइनस 0 इज ऑल्सो 1। एंड इफ ये वाले टाइम ड्यूरेशन के लिए और ये वाले टाइम ड्यूरेशन के लिए यहां पे वैल्यू कितना है 1, यहां पे वैल्यू कितना है 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, सो दैट सिग्नल विल लुक लाइक दिस, और यहां पे एम्पलीट्यूड होगा 1। सो नाउ ये जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है, दिस सिग्नल आर सेम सिग्नल, ओनली द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। सो वी हैव टू मेक द सिग्नल, ये जो एम्पलीट्यूड 1 है इसको मुझे a करना होगा, तो क्या करना है, तो इसके साथ मैं a मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दैट मीन्स इफ आई प्लॉट, ये जो सिग्नल है, सिग्नल क्या था, u ऑफ t प्लस कैपिटल T/2 माइनस u ऑफ t माइनस कैपिटल T/2, तो इसके साथ मैं अगर कोई a मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो मेरा एम्पलीट्यूड 1 है ये a पे आ जाएंगे, so we will get that signal. So we can represent, we can say that this signal is right now the rectangular signal. So a rectangular t by capital T. So this is the representation of the rectangular signal using the unit step signal. So hopefully you have understood this rectangular signal, and thank you for watching the video.